रक्तदान महादान, ये जो फ्रेज़ हमने सुना है इसे अब लोग जो है प्रमोट भी उन्होंने अपनी लाइफ से करना शुरू कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मेल्विन थॉमस, जो कि केरला से है, और आपको बता दें कि वो ऑन फुट पैदल चलते हुए केरला से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इनको 180 डेज़ लगे हैं और इनका जो मेन मोटो है पैदल चलने का वो यही है कि ये ब्लड डोनेशन को प्रमोट कर सके। तो मेल्विन थॉमस मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलो मेल्विन एंड वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। Thank you so much. We would like to know that what inspired you to promote this blood donation? Okay, first of all, my name is Melvin Thomas. I am from Kerala. I started walking from Kanyakumari to Kashmir just to promote blood donation. It's been around 118 days, and the reason I am doing this is after this pandemic situation, the number of blood donors have reduced a very small number. So I thought I should promote this in a different way. So I started walking from Kanyakumari to Kashmir. And So have you faced personally some issues related to blood? yeah, in our village there's a small issue called there was scarcity of even for common blood. So I thought then I asked the blood bank. They told me that after this pandemic situation, the number of blood donors have reduced to a small number. No one is coming forward to donate blood. So I thought I should. I also like traveling, so I thought I should make people aware about this blood donation by traveling. Okay. So I would like to know that it's a long distance, like traveling from one point to the other. It's from south to the north. Like you came from Kerala, all the way from Kerala, you are coming to Jammu and Kashmir. So you have faced many hardship, right? So in between, you just thought of like giving up. No. There was a lot of painful things happen on first to second months. A lot of blisters on my foot. It was really painful, but I never thought of stopping it. So it was all the way by foot only, or some in between you took some lift and all? No. All the way by walk only. So how many people you met, and how many people have changed? Like I have met minimum. I meet people come to ask me. Minimum 50 people come and ask me what I'm doing. I have a backpack and I also have a poster on my back. That's okay, you are carrying a bag with a poster. yeah. That's Kanyakumari to Kashmir by work donate. We would like to see your poster. It's over there. And people come and ask me, and I will explain them about blood They donation. get inspired. Yeah, and they get inspired about this guy is working from so long. So, lot of people have told me that we will start donating blood. Yeah. So what's your further plan? Are you heading towards Kashmir, or you are going back? First I have planned for reaching till Kashmir, but so many people told me that it's not safe to walk from Jammu to Kashmir. So I have thought to stop here. Okay. And anyway I will go to Kashmir and go to Manali, and I will cycle back to home. Okay, you are cycler. You are a cycler also. Yeah, I like to cycle back to home. That's also my first time. Okay, so you are here in Jammu up to which period? Like for how many days you are here? Today and tomorrow. Only for 2 days. Tomorrow. So how many blood societies are there who are working with you? First, when I started this journey, I started this my own. So there was no one for help. After completing 400 kilometers, I am using my social media. So one person saw my videos and called me. He's also a social worker, so he started helping me. And Mr. Venu sir from Kerala, he also created a WhatsApp group. And after that, he introduced me to Meva Singh and Gopal Singh ji, and they are coordinating my trip after that, arranging. He has all over India connection. He is also a big social worker. So like that, I am getting help from him. Are you handling any social media pages, or you are running a YouTube channel and all? No YouTube channel, but I have my Instagram ID and Facebook. That's it. हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो लुधियाना से आए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं एडवोकेट गोपाल सिंह, चेयरमैन यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना से। मैं स्पेशल ये मेलविन के लिए ही आया हूँ यहाँ पे। तो मेलविन से जानना चाहेंगे कि मेलविन से आपका ताल्लुक कैसे हुआ था? मेलविन से ऐसा कि जब ये मेलविन ने यात्रा स्टार्ट की थी तब हमें नहीं पता था। इसने एक्चुअल में ये वायनाड रहता है केरला में,
तो वहाँ से जी बाय बस कन्याकुमारी किया। क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी हमारे कहते हैं कि इंडिया का पैर का अंगूठे का नाखून है, कि वहाँ से ही स्टार्ट करना है। तो ये 400 किलोमीटर बैक जाकर तो वहाँ से इसने ये आगाज़ किया कि मैं पैदल जहाँ पे चलूँगा। तो उसके बाद 400 किलोमीटर तक तो हमें नहीं पता चला था। तो उसके बाद जब हमें पता चला कि ऐसे एक बच्चा आया हुआ है, तो हमने इसको प्रमोट करना शुरू किया, ग्रुप बनाना शुरू किया। ये हमारे विकास जी, विशाल जी, जो हमारे ये जुगल जी जैसे जो सारे हीरे हमारे इंडिया में पड़े हुए थे, तो उनको इकट्ठा करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करके हम आगे के रास्ता बनाते गए। तो अभी जम्मू में पहुंच गए हैं। आज इसका आखिरी ये दिन है यात्रा का, तो इसमें आज फिनिश करने के लिए मैं स्पेशली लुधियाना से आया हूं। मैंने 28 किलोमीटर मैंने भी इसके साथ पैदल चला हूं। वो मैंने चला था हरीके से तरन तारण तक। तो उसके बाद पंजाब में मैं इसके साथ रहा हूं। उसके बाद फिर मैं भी एडवोकेट हूं, तो मेरे को ऑफिस में कई काम होते हैं। तो उसके बाद बाकी जो टीम है सारी, हमारे सर हैं विशाल जी, जुगल जी, जो भी इनकी टीम है, उन्होंने सारा आगे का देखा है। तो ऐसे हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ता गया आगे। मतलब अभी भी लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है ब्लड डोनेशन के लिए, लोगों को अभी भी अवेयरनेस जो है वो नहीं है। मैंने 30 साल पहले अपनी ये ब्लड डोनेशन की शुरू की थी। मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त मेरे भाई को मेरे 9 बोतल खून की चाहिए थी, तो उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ही मैंने ये शपथ ली थी कि मैं कोशिश करूँगा, मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन कोशिश करूँगा कि जी सेवा में किसी को मरने न दूँ। इतने सालों में मैंने पिछले 6-7 सालों में देखा कि लोग अवेयर होने शुरू हुए। पहले तो बिल्कुल ही अवेयर नहीं थे। अभी भी मैंने 102 बार ये डोनेशन की है, जिसमें मेरे 48 ब्लड, 53 एसजीपी और मैंने डब्ल्यूबीसी का भी किया हुआ है। तो उसके इतना बोलते हैं, हमारे फैमिली वाले भी आज भी बोलते थे कि रहने दो, क्यों ये ब्लड के पीछे पड़े हो, क्यों है, लोगों को नहीं समझ आती। इसलिए जहाँ भी ये रुकता है तो वहाँ पे अगर 10, 20, 50 लोग भी हैं तो उनको बोलता है कि ब्लड डोनेशन करिए, ये फैक्ट्री से नहीं आता है, ये हमारी बॉडी से आना है। जो भी अवेयरनेस की बातें हैं वो करता है। वैसे मैं बोलता हूँ कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बहुत से टेस्ट हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो हमारे हो जाते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है, भाई आपको ये HIV की स्टार्टिंग है, जहाँ आपको ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जहाँ आपके ब्लड में कोई खराबी है, जहाँ आपका ब्लड इतना ज़्यादा है कि किसी को दिया ही नहीं जा सकता। बहुत से टेस्ट होते हैं जो हमें करवाई जाती है और हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो अच्छी बात है जो मेलविन भी इस मैसेज को लेके आ रहा है। हाँ जी, मेरे साथ विशाल अरोरा भी है जो जम्मू ब्लड डोनर और वेलफेयर सोसाइटी को चलाते हैं। इनसे भी बात करते हैं। विशाल, किस तरीके का फील हो रहा है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इसको प्रमोट करते हो, और जब ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो इतने हार्ड इनिशिएटिव लेते हैं, तो कैसा फील होता है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस व्यक्ति से, जो सिर्फ 26 साल की उम्र में इस तरह का इन्होंने प्रण लिया कि मैं पूरे भारतवर्ष में रक्तदान, महादान, इस तरह का जो इनिशिएटिव है इसको प्रमोट करूंगा। स्पेशली आप भी जानते हैं, जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में पता है कि जब ये कोविड-19 पेंडेमिक नेशन वाइड अनाउंस हो गया कि पूरा लॉकडाउन, उसके बाद से हमारे जितने भी ब्लड बैंक्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, दे आर रनिंग डाउन, यानी उनका जो बफर स्टॉक होता है वो धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। और आज भी मैं आपको बताऊं कि भारत में जो रक्त की कमी है वो हर साल उससे भी बहुत सारी जानें चले जाती हैं। और अभी आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे ना जाने भी पिछले 2-3 मिनट के अंदर ही 3-4 ऐसी कॉल्स आ गई हैं। एक AB नेगेटिव की कॉल है, जो सोचो कि उन्होंने अपने तौर पे ट्राई कर चुके हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, SMGS एंड अदर ब्लड बैंक्स। तो हमारे पास ये कुछ रेयर ग्रुप्स भी होते हैं जिसकी कमी के कारण ज़्यादातर जान जाती है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रुप्स मैनेज हो जाते हैं। आप भी जानते हैं इस समय जम्मू के अंदर भी वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से कांग्रेशन हम जो है ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन मुझे 26 साल की इस उम्र में मेलविन ने जो इन्होंने प्रण लिया और अपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा है मात्र 118 से 19 दिन में इन्होंने पूरी करी है। और कल शाम को जब ये जम्मू पहुँचे तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई, क्योंकि मेरी टीम ने इनका स्वागत किया। हमारे साथ गोपाल जी हैं जो इनका साथ दे रहे थे, लुधियाना से लगातार इनको ट्रैक कर रहे थे। हमें इसकी जो जानकारी है, जब ये ब्लड डोनर पठानकोट की जो टीम है वहाँ पहुँचे हैं सरना में, तो उसी दिन से हमें पिछले 4-5 दिनों से हमें लगातार हम इनको ट्रैक कर रहे थे कि रेगुलर मॉर्निंग में मेलविन से एक बार सुबह बात हो जाती थी कि मेलविन आज आप कहाँ पे और आगे का आज पूरे दिन का आपका जर्नी स्केड्यूल क्या है। तो मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के युवा जो हैं साथी, जिनको लगता है कि इससे बड़ी देश सेवा और कुछ नहीं हो सकती है। सिर्फ बॉर्डर पे हमारे जवान जो शहीद होते हैं, जब वो लोग जो सेवा दे रहे हैं वही देश सेवा नहीं है। भारत के अंदर रह के बीइंग अ सिविल सोसाइटी पर्सन, हम अगर लोगों की जान बचा सकते हैं तो इससे बड़ा नोबल कॉज मुझे नहीं लगता कोई और है।
विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लाइक दिन के कितने लोग आते हैं आपके पास जो ब्लड की नीड में होते हैं, ब्लड अरेंज करवाते हैं? तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में मिथ है कि ब्लड नहीं देना है, ब्लड देने से वीकनेस हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप लोगों का वो जो मिथ है ना उसको बर्स्ट कर दें। मैं सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 18 ईयर्स, मिनिमम वेट रिक्वायर्ड इज़ 45 kg, मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड इज़ 12.5 ग्राम। और कोई भी बंदा अगर डोनेट करना चाहता है पहली बार, हम ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ा तो ब्लड बैंक में लेटाया तो खून निकाल लिया, वैसा काम नहीं होता। उसके सारे के सारे फिजिकल टेस्ट होते हैं, देन फॉलोड बाय द मेडिकल टेस्ट। जब तक डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, ब्लड बैंक में जो ब्लड बैंक इंचार्ज सेटिस्फाइड नहीं है, हम तब तक ब्लड जो है उससे डोनेट नहीं करवाते। एक पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक फॉर्म होता है जिसमें कंसेंट फॉर्म जिसको कहते हैं, वो कंसेंट फॉर्म में हर चीज़ इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर की जाती है डोनर के साथ, खासकर जो फर्स्ट टाइम डोनेट करने आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 90 दिन का पीरियड है, आप अगेन डोनेट कर सकते हैं। हम सिर्फ उसी कंडीशन में ब्लड नहीं लेते अगर कोई बंदा बीमार है या किसी तरह की लाइफ स्टाइल जो उसकी बीमारी है उस पर मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, हम उसको क्लियरली मना कर देते हैं। आप अपनी जो है सेहत का ख्याल रखें, जब आप ठीक हो जाएं तब डोनेट करिए। और मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ डॉक्टर पादा जैसे जो है साथी हैं इस समय, जो रक्तदान के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरह का हमारे प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। वापस हम मेलविन के पास आएंगे और मेलविन से लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। मेलविन, आज फैमिली इज द बैकबोन, सो हाउ योर फैमिली सपोर्टेड यू? When I told them about this journey, they didn't support me, and I had to convince them. So I thought I only walk 25 kilometers a day. Then, however, they allowed me to start this journey. Now they are supporting? Yeah, they are supporting. At last, I want you to give a message, because so many people, they are capable of blood donating, but still they are not coming forward for blood donation. So I want you to give an inspiring message to, especially to youngsters. Okay. I all have to say is you just donate blood. You can go to any blood bank and donate blood, and the benefit also you get is you will get if you donate every 3 months, you will also get your body checked up, and you will be blood, if anything goes wrong in your blood, you will be getting noticed very quickly. So it's really important to donate blood. You will also get automatically your new blood cells. So it's really important to donate blood, and when you are donating one unit of blood, you are saving at least 3 lives. That you have to remember, and donate blood, save life. थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मेलविन थॉमस और वो तमाम लोग जो लुधियाना से भी आए हैं, जो जम्मू से भी एक्टिव ब्लड डोनर्स हैं और सोसाइटीज़ को रन कर रहे हैं। तो एट लास्ट अपने मैसेज में भी यही सुन लिया कि जो रक्तदान है वो महादान है। आप ना सिर्फ अपनी जान को बचाते हैं, इवन कि आप दूसरों की जानों को भी बचा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड।